but the college was very far from my house, so I have to take hostel and things. And as I said, our financial background was not that strong at that time, because we're really in a critical situation right there. So I had to do something. So I took a drop to prepare for next year. So in that drop year, I was trying actually. I was actually helping my family financially by taking numerous tuitions, and also I actually repaired computers in my job. That just before the GATE exam, 3 days before the GATE exam, I got a call for repairing his computer. A person called me, "Can you repair my computer?" I said, "Yeah, but I actually left that job 3 years back." तो हम लोग घर में जाके पबजी खेल रहा था वो सेकंड ईयर में भी, पर फिर भी वो जो टाइम हम लोगों को मिला था वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, वो बहुत एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक वेरी गुड टाइम फॉर अस टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। तब भी अगर मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊँ आप लोगों को, 2020 जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें अगर किसी ने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो वो अकेला देवदूत था, क्योंकि हम लोग का जो पूरा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग पूरा पबजी, इतना ज़्यादा पबजी खेल रहे थे कि हम लोग का KD 2.53 के आसपास, मतलब हम लोग T1 T2 3 स्क्रीम्स भी खेलते थे, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा, अब पबजी प्लेयर ही बनना है, इंजीनियर गया भाड़ में, मम्मी पापा जो पैसा दे रहे हैं वो गया भाड़ में, अब मुझे तो T1 T2 मतलब ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, अब हमारा हालत ऐसा। So hi everyone, welcome back to the first video of Sparket Presents Scholar Spotlight. So in this series we will talk with all the toppers who have topped and passed GATE with flying colors, and we will not only know about their GATE preparation journey but also about their personal life now, from where they have begun to where now they are. हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव से बताया जाए कि एक स्टूडेंट क्या क्या फेस करता है, मेंटली हो, प्रेशर कैसे हैंडल किया जा सकता है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो वी विल टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो हाई ऑल, वेलकम बैक. एज वेलकम बैक की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वेलकम कर चुका हूँ, तो नई बात कोई नहीं है. So we have with us Devdut. So a brief introduction about him. Devdut is AIR 52 in GATE Computer Science 2023 this year. So first of all, hearty congratulations on this feat, and thanks for and also congratulations on getting admission in IIT Bombay. It's really a feat that many students are not able to get that dream college, because IIT Bombay is such a prestigious institute of India. So we want to know more insights on you. So if you will, now I am handing over the mic to you. So if you will. थैंक यू सो मच शुभदीप फॉर ऑल द विशेस. ये एक्चुअली ये खुद ही एक टॉपर है. इसका तो ऑल इंडिया रैंक 229 आ चुका है इस ईयर, this year in GATE CS. So he's actually going into IIT Madras. So I'm giving an introduction of himself. Thank you. Okay, so what do you want to know? So सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आप रहते कहाँ पे हो, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, और ये IIT कब से एक ड्रीम रहा, तो ये IIT के बारे में पता कैसे चला, तो इसके बारे में अगर आप बताएं. So actually I'm from Kolkata. So I did my schooling from South Kolkata school, which is A.K. Ghosh Memorial. So after that I got into the science stream. Actually in my whole family everyone is almost like engineers. So everyone is studying engineering. So it was kind of like you know कि यही होना है कि बड़ा होना है तो इंजीनियर होना है हमारे घर पे ऐसे ही. तो वो तो इसके लिए हम लोग 11-12 में तो साइंस ले लिया जोश में. फिर जाके पता चला कि ये तो केमिस्ट्री तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है. केमिस्ट्री का इतना एक्सेप्शन, इतना ये तो मेरा मतलब ऐसे करके जेई में अच्छा मार्क्स कहाँ से लाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो पहले आया. फिर जाके वही कि 11-10 में बहुत काइंड ऑफ लाइक अच्छा स्टूडेंट था. फिर जाके 11 में जाके देखा कि अरे यार ये तो मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है. फिर भी बट आई लाइक्ड मैथ्स एंड फिजिक्स, बट ओनली थिंग आई डिडंट लाइक इज केमिस्ट्री. तो इसीलिए जेई मेन वॉज नॉट दैट गुड. Besides that, in my 12th, before just 3 months before my board exam and JEE, my father actually passed away in cancer. So it was a really hard time for us. There was financial struggle and like it was a very disastrous moment for us. So due to that, I actually in my JEE, actually we have a thing called West Bengal Joint. So I actually gave West Bengal Joint on my 12th, but my rank was not that good. I got into a private college in TFW, but that was also like very far from my house. So TFW is a scheme in West Bengal where you don't pay the tuition fee in your college. The government actually pays for you.
So, but the college was very far from my house, so I have to take hostel and things. And as I said, our financial background was not that strong at that time because we were really in a critical situation right there. So I had to do something. So I took a drop to prepare for next year. So in that drop year, I was trying actually. I was actually helping my family financially by taking numerous tuitions, and also I actually repaired computers in my drop year. So I almost repaired 50 to 60 computers in my neighborhood area, and almost I had kind of like a shop. It was actually my neighbor's shop. I actually used to visit him to get repairs for his shop, and I used to do that thing. So it's kind of like really inspiring like for me to उधर से जाके आज इधर से आ गया. तो it was quite a hard struggle for me. So this is the thing. Now after that, in my second year, I mean after the drop year, I gave my OFG and I got into this college. We are actually shooting in this college right now. You can see the background. It's actually a ceramic government college in our Kolkata. So I got in here with computer science engineering, and Shubhodip is also my classmate. So now we are pass out, and we're just it's actually a holiday, so no one is in our college. So Shubhodip, do you want to say something? No. So hearing, yes, that's a very inspirational actually, because the hurdles you have faced in your life, overcoming that, and as you said, you repaired computers. So that's a lot of struggle. Honestly saying, that's a lot of struggle. No aspirant can pull off the stunt like this. Seriously. The thing Honestly is that- speaking. The thing is that just before the GATE exam, 3 days before the GATE exam, I got a call for repairing his computer. A person called me, can you repair my computer? I said, yeah, but I actually left that job 3 years back. You could have, I'll just give you another number, just call him there, he will fix your computer. And it was really like funny for me, like how I have came so far. So this is it. Now say him that I am no more a hardware programmer, I am now a software programmer, and I don't work in local shops. I am trying to work now in Google. So all the best for your future. Also do as you have done throughout these years, giving such a struggle for GATE, then preparing on your own, then always give your best like you have always done. And it was really inspirational learning that how much you have already struggled in your life and overcome that. So if I want to know one more question, like what was the role of your BTech college in this preparation journey? Like was there a good support from the college, or like you had to manage everything, like placements, everything, and assignments? And we all know, right, what we all have to face in our BTech life. So was that manageable, and what was the role of your BTech college in this achievement? Actually, the thing is that when I got into this college, I was quite aware of the placements, that the placements were not that top notch. It's also not that bad. I heard, obviously. You don't like तुम अगर खुद आके इधर नहीं आओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, राइट? तो इसलिए तो मैं सोचा कि हाँ ठीक है, मे बी आई वांट टू क्रैक अ गुड इंटर्नशिप. आई वांटेड टू क्रैक अ गुड इंटर्नशिप in my second year. So basically in my first year and second year, I was actually doing lots of competitive programming and some interview preparation stuff to crack a good internship. But the problem happened is that no, we don't have any kind of internship opportunity in our on campus. So like कोई भी internship opportunity इधर नहीं आते हैं. So it's very hard, like it's a very hard pill to swallow Like, for it me. generally happens in the tier 3 colleges. It's normal for us. Like we don't have that much infrastructure like we all have in IITs, but it's not that a bad college actually. I am not saying that GCCTs don't come to GCCT, it's that bad college, but it's actually the scope or wider opportunity what tier 1 colleges like DTU, NSUT, IITs, IISCs give you. You won't be getting that much amount of facility here. You have to work like about tremendous.
if you have the talent and if you work hard, you will obviously get it. So that's will be my verdict on what my college is, and like what I have experienced. So yes, Yeah. continue with you. सो कमिंग टू सेकेंड ईयर, तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो कर लिया, अब मतलब अच्छा भी हो रहा है, मतलब लाइक लीड कोड कर रहे हैं, तो अब तो इंटर्नशिप तो लाएगा ही लाएगा। तो अब तो जाके मैं रेज्यूमे को सेंड वेंड किया, सब वो होता है ना अमेजन का पोर्टल से, लेट से कि जॉब ओपनिंग है SD इंटर्न, सो आई सेंड देम। नाउ द प्रॉब्लम इज द रिजेक्शन मेल भी नहीं आया, कि रिजेक्ट आप जो रिजेक्ट उसका भी मेल नहीं आता था, लाइक उधर पेंडिंग रहता था वो, मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने खुद रेफरल लेके भी मेरा रेज्यूमे सेंड किया, तभी भी जाके रेज्यूमे अप्रूव नहीं हुआ। तो मैंने मतलब सोच लिया कि हाँ भाई टायर थ्री से हूँ, तो मैं मतलब सारे दरवाजे बंद ही है मेरे लिए, तो ये तो है। तो अब जाके सोचा कि हाँ अब क्या करें, तो लाइक एक्चुअली माई at that time my sister was actually preparing for GATE. My sister was elder sister for me, she is 2 years older than me, so she is actually from EC department, so she was preparing for GATE, and I knew about GATE before actually my drop year, so actually she was determined that she will give GATE, सो आई न्यू कि हाँ गेट करके एक एग्ज़ाम है, कि ऐसे नहीं कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हम लोग थर्ड ईयर में आके पता चला हाँ गेट करके कुछ एग्ज़ाम है, दैट्स नॉट ट्रू फॉर मी। मतलब तुम्हारे फैमिली हाँ, में ऑलरेडी था ये वाला चीज़ like कि हाँ exactly. गेट होता है एक एग्जाम जिससे मास्टर्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सो माई तो वो एक इंस्पिरेशन बनी कि हाँ तुम गेट दे सकते हो, गेट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, बेटर देन अगर तुम कुछ लाइक ओल्ड IITs या कुछ न्यू IITs में NITs में तुम्हारा अगर एडमिशन ले लिया तो यू कैन गेट गुड प्लेसमेंट्स, राइट? As you said, she is an inspiration. Can you like say? Yeah, I'll tell obviously. Yes. So yeah, so this is it for the college part actually, and we like from the teachers I can say some of the teachers were very helpful for us. Like one of the thing for us is that we got our COVID period almost in our home. So like in my second year and third year I was almost like 99% time I was at home, most of the time. Like हम लोग कभी कॉलेज उतना अच्छे से आए ही नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो छोड़ ही दो, तो कोविड का टाइम था, तो हम लोग घर में जाके पबजी खेल रहा था वो सेकेंड ईयर में भी। पर फिर भी वो जो टाइम हम लोगों को मिला था वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, वो बहुत एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक वेरी गुड टाइम फॉर अस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। तब भी अगर मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊँ आप लोगों को, 2020 जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें अगर किसी ने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो वो अकेला देवदूत था, क्योंकि हम लोग का जो पूरा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग पूरा पबजी, इतना ज़्यादा पबजी खेल रहे थे कि हम लोग का KD 2.53 के आसपास, मतलब हम लोग T1 T2 3 स्क्रीम्स भी खेलते थे, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा, अब पबजी प्लेयर ही बनना है। इंजीनियर गया भाड़ में, मम्मी पापा जो पैसा दे रहे हैं वो गया भाड़ में, अब मुझे तो T1 T2 मतलब ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, अब हमारा हालत ऐसा था। तो ऐसे ही, तो फिर भी वही 2020 से ही मैं एक्चुअली सीरियस हो गया था। 2022 में हम लोग सेकेंड ईयर में था, तो सेकेंड ईयर में मुझे पता चल गया था कि हाँ इंटर्नशिप नहीं लगने वाला है इधर से, तो मुझे गेट ही देना है। तो मैं छोटा करके गेट का प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया, कि द DSA थिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, C, वो सब, तो वैसे ही स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं गेट प्रिपरेशन के में बाद में आएंगे ऑब्वियसली, मैं कॉलेज की बात हो रहा था, तो वही जो 2 इयर्स मिला था हम लोगों को, वो एक्चुअली वेरी क्रूशियल फॉर अस, क्योंकि उस टाइम को हम लोग एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ किया, मतलब जो भी लोग आज टॉपर है एक्चुअली वो टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। ठीक है, यही है। और द टीचर्स वर, सम ऑफ द टीचर्स वर वेरी गुड, लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू पिंग देम दे विल डेफिनेटली आंसर, ओके, सम ऑब्वियसली। टीचर्स ऑनेस्टली बताओ तो हम लोग के लिए मतलब 7th सेमेस्टर जो हम लोग के गेट के पहले वाला सेमेस्टर था, विच एंडेड इन जनवरी एक्चुअली, मतलब वो वाला सेमेस्टर मतलब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टीचर से सपोर्ट मिला था हम लोग को, क्योंकि वो लोग जानते थे हम लोग गेट के लिए अपीयर करने वाले हैं। तो इस मोमेंट पे अगर टीचर से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता तो ये वाला रैंक नहीं आता। ऑनेस्टली ह्यूज क्रेडिट गोज टू देम, बिकॉज एक्सेप्शनल सपोर्ट मिला था। जो 5 टीचर थे हमारे 7th सेमेस्टर में, एक्सेप्शनल सपोर्ट मिला था उन लोगों से कि हाँ तुम लोग जो लोग प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, फुल प्लेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। हम लोग के कॉलेज से जो अच्छे प्लेसमेंट है उसके बारे में भी हम लोग किसी दूसरे दिन बात करेंगे।
क्योंकि हम हमारे ग्रुप में बहुत सारे दोस्तों को बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जॉब्स कर रहे हैं अभी, तो उसके बारे में किसी दूसरे दिन बात होगी। अभी आज फिलहाल गेट का ही एपिसोड है। तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई नॉट प्लेसमेंट एंड व्हाई गेट? मैं तो पहले ही बताया था, रेज्यूमे स्कैन नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट कहाँ से होगा? लाइक अरे द थिंग इज दैट आई ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट गेटिंग इनटू अ फैंग कंपनी, तो वही मेरा ड्रीम था। अब अगर मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो नहीं हो रहा है, ये तो मतलब जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये तो मतलब वो लोग तो चांस तो देगा टैलेंट एक्सपोज करने के लिए। मतलब मैं अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ जाके करूँ? वो अगर प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी कि हाँ भाई मतलब इतना प्रैक्टिस किया, इतना एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस किया, बट वो लोग मतलब स्कैन ही नहीं कर रहे, रेज्यूमे स्कैन ही नहीं हो रहा है। क्या मतलब क्या करूँ? प्रोजेक्ट्स भी करता था, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स तो करता था, बट ठीक है जो भी है, मतलब नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनी ऑफ देम, बट वही यही है। और प्लस एक्चुअली आई वांटेड टू डू सम हायर स्टडीज़ फ्रॉम आईआईटी कि देखो हर एक बंदा का जो जेई मेन गलत हुआ है उसका ड्रीम रहता है आईआईटी जाने का, राइट? तो गेट इज एक्चुअली द लास्ट ऑप्शन, या आई शुड नॉट से लास्ट ऑप्शन, Actually, it's a but good it is a good one of the options to get into, which gives you a second opportunity to get into IIT, right? So yeah, it was kind of like dream for me to get into IIT, so it was also an inspiring factor for giving GATE. Besides that, placement was also a good factor, but I should not say I'm giving GATE for placement. That's not true. I actually like computer science a lot. Like I used to what do you say, मतलब मेरे घर में कंप्यूटर है almost like when I was class 2 or 3. So in 4 or 5 मैं क्या करता था, पापा तो मतलब कंप्यूटर में ही काम करता था, तो मैं पापा जब कंप्यूटर में उठ जाता था तो मैं पापा क्या करते टोटल, माय फादर वाज एक्चुअली अ सिविल इंजीनियर, सो ही यूज्ड टू वो डू इंजीनियर मतलब पूरा ब्लड में ही दौड़ रहा नहीं है। ऐसे नहीं, बट वही मतलब सारे के सारे लोग काइंड ऑफ लाइक इंजीनियर्स ही है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो वो जब उठ जाते थे उससे मतलब कंप्यूटर से, तो मैं क्या करता था, कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके पूरा कंप्यूटर का पार्ट्स खोलता था। तो इसके लिए मतलब बहुत बार मैंने मतलब पछताया है कि फिर देखा कि एक पार्ट जोड़ नहीं रहा है, एक पार्ट ये वो नहीं हो रहा है, बट फ्रॉम देयर एक्चुअली आई ग्रो अ पैशन ऑन कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर के साथ एक रिलेशन है मेरा, तो पढ़ना है तो कंप्यूटर ही पढ़ना है। तो आई वॉज लाइक डिटरमाइंड इन माई क्लास 7 और 8 कि हाँ कंप्यूटर से इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही तो वही फिर जाके जब गेट के बारे में सुना, ऑब्वियसली गेट इज ऑलमोस्ट लाइक थियोरी टेस्ट फॉर यू, लाइक उधर तो प्रैक्टिकल उतना नहीं रहता है, बट थियोरिटिकल इज फार मोर, उससे मतलब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये थियोरेटिकल से आपका क्या मीन है, तो उसको अगर एलाबोरेट करेंगे? Like you don't have to do practical stuff on GATE exam, right? You don't have to write a program there. Yes. Okay, it's actually based on your concepts, which is actually like एक कंप्यूटर के बारे में जो theory concepts है, it's not like कि मैं पूरा बोलूँगा कि ये पूरा theory है. These are also practical knowledge because you will need this knowledge. मतलब ये अगर आपके पास ये नॉलेज अगर आपके पास है, देन यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर कैरियर फॉरवर्ड, राइट? जो भी है, तो वही बोल रहा था। तो ये देखा कि गेट में बहुत अच्छी तरीके से हमको कंप्यूटर साइंस को समझना है, पढ़ना है, तो मैं इंटरेस्ट तो होगा ही, मतलब होगा ही कि हाँ भाई ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब नेटवर्किंग पढ़ रहा था, कंप्यूटर नेटवर्क, लाइक आई वाज लाइक अम्यूज्ड कि अरे मतलब इतना फास्ट एक चेन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, लाइक इन अ नेटवर्क व्हेन वी आर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, और इसके पीछे जितना वर्किंग हो रहा है, तो इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि इतना मिली सेकेंड्स में, एंड और मैं और भी इंटरेस्ट ग्रो हो गया कि मेरा अरे यार इतना लाइक इतना वर्क हो रहा है, इतना इस मिली सेकेंड में, इट्स क्वाइट लाइक फॉर सरप्राइजिंग टू मी। सो या, so this is the thing for GATE. It's not just only about placements. Okay, so I got all of your points, that what was your support from the BTech college, how you did, what was your inspiration, what was your background, we all got that. Okay, so one of the common queries we all get in our LinkedIn DMs are that भैया
मेरा प्रिपरेशन मतलब प्लेसमेंट सामने आ रहा है, तो मुझे प्लेसमेंट में जाना चाहिए या गेट पे? That most of the aspirants are confused between placements or gates. So what will be your verdict on that? That whether I should go for placements or go for gate, or there is one more option, right? Like we can get one job at our hand, then prepare, that many aspirants do. So what will be your verdict on that? That how should a aspirant judge on what factors, that what should he is going to do, like when he's facing this problem of choosing between gate and placement? So what are the factors he must keep in mind? Okay, I think ये पूरा का पूरा ही I guess this depends on your circumstance, like where you are now. The thing is that when I was preparing for GATE, I was on the side, I was actually teaching almost 9 to 10 students in 2022. Like before GATE 2022, I had a batch of almost around 12 students. I was teaching computer science. So yeah, so it was like a really time consuming thing for me, but yeah, it was necessary for me to sustain because I had to financially help my बंदे ने सब करके रखा है यार, ट्यूशन पढ़ा लिया, गेट क्रैक कर लिया, बॉम्बे निकाल लिया, सब करके रखा है बंदे ने, हार्डवेयर भी सही कर दिया है. अरे ऐसे नहीं, बट वही कि इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंस. अब देखो, मैं अगर वो करते करते अगर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर लूँ और गेट का भी, तो मेरा कुछ नहीं निकलता. मेरा प्लेसमेंट भी नहीं निकलता, मेरा गेट भी नहीं निकलता, और मैं उधर से वो जो ट्यूशन वो उधर भी मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, तो उधर से भी मुझे बाहर निकाल देता था. फिर भी वही जो मैंने बोला, सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम कहाँ हो. तो उसको समझो कि तुम दोनों सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं. ऐसे नहीं कि कुछ लोग बोलेगा कि अगर तुम गेट के पास जा रहे हो तो गेट ही करो. हाँ, ये पॉसिबल है, दिस इज़ ट्रू इफ़ यू आर लाइक 3 months बिफोर गेट. अब तुम बोल रहे हो कि गेट में जाओ, प्लेसमेंट में जाओ. अब तुम 3 months पहले अगर, या 3 months पहले भी अगर तुम श्योर नहीं हो कि तुम कहाँ जाओगे, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम. यू हैव टू चूज अ पाथ. बट लाइक तुम अगर देर से, मतलब यू आर इन सेकेंड ईयर एंड यू आर कन्फ्यूज, क्या करूँ, प्लेसमेंट करूँ या तुम्हारा गेट करूँ, तो ये आपके सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम क्या करना चाहते हो. लाइक तुम क्या गेट देना चाहते हो, डू यू वांट टू डू हायर स्टडीज़, लाइक तुम क्या चाहते हो पढ़ने में, या तुम चाहते हो प्लेसमेंट. अब देखो कि अगर प्लेसमेंट चाहते हो तो तुम्हारा कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, ये देखो. अगर नहीं हो रहा है, तो अगर मनपसंद प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कि लाइक यू वांट टू गेट इनटू अ फैंग कंपनी, यू वांट टू गेट इनटू अमेजन, लाइक अब देखो कि तुम्हारा कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं अमेजन में. अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तुम गेट करो, राइट. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चूज अ पाथ, एटलीस्ट व्हेन यू आर इन 4th ईयर. तो 4th ईयर जब है, लाइक तुम्हारा बजना बज गया कि हाँ, अब चूज़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उसके हिसाब से तुमको लाइन चूज़ करना है इसके बाद. तो यही थिंग. Okay, so your verdict is that we should choose only one path. We shouldn't At be the at the end of the day, we should be choosing one path, not like putting 2 feet in 2 boats. Then we will fall in the water. So we should be choosing only one. So the verdict is right. Obviously, that makes also sense, right? That if you are preparing for GATE, go wholeheartedly for GATE, or if you are preparing for placement, go wholeheartedly for placement. So don't keep any confusion. So that was his obviously opinion. So now the next question is how to prepare for GATE CSE. Yeah, I wrote a blog about it on Quora. You can like check the description link here. I've actually given a lot in detail there, but obviously I'll speak here ki how to prepare for GATE. Like how was your preparation journey? If you can elaborate. Like Yeah. you said you started in 2020, as you are a 2019. I'm You got inside the college in 2019. 2019. So 2020 was your second year, right? So how you started from 2020? Like you said, you are also a 4-star on CodeChef. How did you manage both? अरे ऐसे नहीं, पर फिर भी भाई जो मैंने बोला, हाँ, तो मैं जब सेकेंड ईयर में 2020 वाज एक्चुअली माई टर्निंग पॉइंट. लाइक उधर जब वो जो हुआ ना, कोविड हुआ ना, उसी ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया. लाइक उधर से मेरा मोटिवेट हुआ कि हाँ, गेट देना है. फिर जाके एक्चुअली आई स्टार्टेड गेट प्रिपरेशन, आई वुड से इन 2020, बट इट वाज नॉट लाइक कि मुझे गेट क्रैक करना है. ऐसे मेरा मोटिव था पहले सब्जेक्ट को समझना है. तो इसीलिए मैं अराउंड 2020 अगस्त में अराउंड वो जो DSA C, लाइक
ये तुम्हारा सेमिस्टर में रहेगा ही सेकेंड ईयर में। तो मैंने सोचा कि हाँ सेमिस्टर में तो रहेगा ही, पढ़ना तो है मुझे। तो इट वाज नॉट एक्चुअली लाइक गेट के लिए पढ़ना है, इट वाज लाइक समझना है। तो इसलिए मैं डी एस से सी ये सब तो कर लिया। अब ये सब करते करते एक्चुअली मैं वो सी पी में इंटरेस्टेड हुआ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो तब जाके गेट का वो जो हवा था वो निकल गया मेरा। I would like to yes, interrupt sir. you just this. So, guys, if you want the links from where did he studied, you can find his Quora blog in the description. So we won't be taking any company's name in this interview. We want to keep this मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब हमें किसी कंपनी का नाम नहीं लेना, क्योंकि ये हम दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। ये वाला वीडियो आप लोगों को देना। तो हम लोगों ने किससे किया है, क्या किया है, तो ये सब हम लोग आगे वीडियो में बोलेंगे। पर अगर आपको और जानना है तो आप कोरा का ब्लॉग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, कंटिन्यू विद योर Right. सो या वो हाँ सेकेंड ईयर में तो वही सेकेंड ईयर में तो जब वो डी एस ए करता था, सी पी करता था, फिर थर्ड ईयर में जाके मैं सीरियस हुआ गेट के लिए। तो अराउंड थर्ड ईयर आई गेस अराउंड थर्ड ईयर का इवेंट सेम राइट, द वन which is from December right? थर्ड ईयर इवेंट सेम, यस यस। या सो ये फ्रॉम थर्ड ईयर इवेंट से मैंने बोल सकते हो कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही मैं एकदम समझ लिया था तो गेट देना है, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैं इंटर्नशिप ट्राई किया, नहीं हो रहा था। Sem started when that GATE 2022 just got over. Yeah. Yes. Like- yes. या नॉट गेट 22। आई वाज एक्चुअली सेइंग अबाउट गेट 2022 के पहले, मतलब थर्ड ईयर थर्ड ईयर स्टार्टिंग अराउंड जून जुलाई लाइक दैट विल बी अराउंड ईयर 2021। ये हम लोग का थोड़ा लैग चल रहा था शायद, वो शायद अबाउट अक्टूबर पे स्टार्ट हुआ था। Yeah. कुछ भी हो Actually, उधर से ही मैं इट स्टार्टेड इन अक्टूबर, उससे Yeah. चलो यार। तो उधर से ही मैं स्टार्ट किया था गेट के लिए। मैनेज करना पड़ा था यार, क्योंकि वो कोविड में क्या हुआ था ना हम लोग के कॉलेज में कि बीच का पूरा एक साल का पूरा एक लैग हो गया था हम लोग के पूरा करिकुलम में। तो अबाउट मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक कुछ नहीं हुआ था। तो हम लोग अबाउट 6 मंथ्स के आसपास लैग कर रहे थे। तो फिर ये मैनेज करना पड़ा कि कुछ सेमेस्टर्स बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन के थे, क्योंकि जनरली सेमेस्टर इज ऑफ 6 मंथ्स, वहाँ पे हम लोग का सेमेस्टर वो कट डाउन टू 3.5 मंथ टू 3 मंथ्स भी कभी कभी किसी सेमेस्टर पे। सो ये हम लोग को मैनेज करना था, इसलिए हम दोनों ही डेट भूल चुके हैं कि मतलब क्या था, इतना जल्दी गया है कोविड के बाद। हाँ वही थर्ड सेम फिफ्थ सेमेस्टर। हाँ तो वही उधर से ही तो मैं थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग्स है ना, उधर से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। तो उधर से ही बोल सकते हो कि गेट का प्रिपरेशन काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग। सो ऐसे करके तो गेट 2020 मतलब कर लिया, पूरा सारा सब्जेक्ट्स ही कर लिया, थोड़ा कुछ बचा रहा था। मतलब मैंने जब थर्ड ईयर का गेट दिया था अराउंड गेट 2022, तो उधर मैं आई डिड नॉट डू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट, तो वो दोनों सब्जेक्ट छोड़ दिया था, और ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, तो वो 3 सब्जेक्ट अराउंड छोड़ दिया था मैंने। तो जब गेट 2022 दिया था वी वर इन थर्ड ईयर वो दोनों ही, तो आई गॉट अराउंड रैंक 2152। ओके, सो या इट वाज लाइक मैंने सोचा कि अराउंड मे बी 1500 के आसपास आ जाएगा या 1500 के कम आ जाएगा, बट एक्चुअली आई पैनिक्ड अ लॉट ऑन द एग्जाम हॉल। लाइक मैं जब क्वेश्चन और गेट 2022 का जो पेपर था वो दैट वाज नॉट लाइक वेरी ट्रिकी बट नॉट वेरी इजी, इट वाज लाइक वेरी स्टैंडर्ड प्योर कॉन्सेप्चुअल पेपर था 2022। तो बहुत ही अच्छा पेपर था वो। मतलब मैंने जब उसके बाद आके सॉल्व किया था, मतलब जब 2023 के प्रिपरेशन ले रहा था तब मैंने जब सॉल्व किया था, आई रियली एंजॉयड सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। लाइक ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम सेट किया था। तो वो प्रॉब्लम जब मैं एग्ज़ाम हॉल में देखा था, और मैं ऑब्वियसली उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था उस साल 2022 में, क्योंकि मैं PYQ ठीक से नहीं किया था। तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कम टू दैट ऑब्वियसली। सो PYQ ठीक से नहीं किया था, टेस्ट सीरीज भी ठीक से नहीं दिया था, तो काइंड ऑफ लाइक आया था। तो मैंने सोचा कि हाँ आई वॉज डिवास्टेटेड कि यार इतना पढ़ा, क्योंकि मैं 2022 में पढ़ा था ऑलमोस्ट अराउंड 3 महीना अच्छे से पढ़ा था। तो 3 महीना कुछ नहीं होता, फिर भी मतलब पढ़ा था। मैं भी सोचा था हाँ भाई 1500 के आसपास तो आ ही जाएगा, बट वही 2152 आ गया था। तो या तो वो एक्चुअली फिर जाके मोटिवेटेड हुआ, नहीं अब तो कुछ करना है। तो जब 2022 का साल लाइक दिस ईयर 2020, मतलब उस साल मैं एकदम अच्छे से किया, मतलब उस साल पूरा एकदम ट्रैक करके किया था। तो आई विल कम टू
that maybe this. So Devdut, you said about your GATE 2022 journey, like what were the subjects you studied, what you left behind. So if you would like to elaborate on what were the shortcomings you faced in GATE 2022, like mistakes you did, what were the learnings you got from GATE 2022, if you kindly elaborate. Okay, so actually, first of all, I did not do well. Like मैंने PYQ ठीक से नहीं किया, तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. मतलब मैं जब 2023 का प्रिपरेशन कर रहा था, लाइक आई डिड PYQ एक्सटेंसिवली. ठीक है, बहुत बार किया है. ऐसे नहीं कि एक राउंड में किया है, मतलब मैं 3-4 बार राउंड में PYQ किया था. तो जो मैं 2022 के प्रिपरेशन के टाइम में एक्चुअली आई डिड नॉट डू PYQ दैट वेल. कि मैंने सोचो कि PYQ का बुक निकाला, मे बी 3-4 PYQ किया, बंद करके रख दिया, फिर जाके नॉर्मली वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था. द थिंग इज़ दैट गेट इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल बेस्ड. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड कम ही आते हैं, राइट. इस साल में भी आया था कुछ, बट नॉर्मली डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड तो नहीं आते. तो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो वो मैंने 2022 में नहीं किया. 2022 मैंने क्या किया था, जो कोर्स का कॉपी था उसको जस्ट देखता था, कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, दैट्स इट. बट नॉट डिड न्यूमेरिकल्स वेल, राइट. तो वो एक प्रॉब्लम था. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने किया था, मैं टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज ठीक से नहीं किया. तो टेस्ट सीरीज़ एनालाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तुम एक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, उसके बाद यू हैव टू चेक कि कहाँ जाके प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. क्योंकि वो प्रॉब्लम तुम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हो, राइट. यू डोंट वांट टू डू द सेम मिस्टेक अगेन. तो ऑब्वियसली, तो मैंने, द थिंग इज़ दैट आई डिड analyze every test series very well in 2023. So that was not in the case of 2022. So that was a shortcoming for me. And that is the reason for because that is the reason I did same mistakes repeatedly in 2022. Most of the test series. And the last thing is that I panicked a lot in the exam hall. So I like when I got the 2022 paper on my screen, it's like I was like almost like nauseous. I was like vomiting kind of thing. I could not process the exam atmosphere at that time. So this is why जब जो easy question था, जो concept मैंने पढ़ लिया था, जो concept मैं sure था कि हाँ I can do that, do this question from this concept, I could not, because जो होते हैं, तुम अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया तो इट्स बैड फॉर योर. तुम्हारे दिमाग में एग्जाम फियर बैठ गया था. या काइंड ऑफ लाइक दैट. क्योंकि और मैंने उस साल लाइक फुल लेंथ मॉक भी उतना अच्छे से नहीं दिया था. मे बी 1-2 दिया था, बट दोज वर ऑब्वियसली नॉट गुड. लाइक अच्छा नहीं था मेरे लिए वो. तो इसलिए मेरा एग्ज़ाम फियर उस साल पूरा एकदम मेरा एग्ज़ाम ही पूरा गड़बड़ कर दिया. यही है. So this is the thing. Okay, so and continuing with your discussion, like you said, you prepared wholeheartedly for the 4th year. You did some management from the online studies, what you did in your CPVP from the 2nd and 3rd year. Like you were not that serious, I should say. In the 4th year, you were like fully dedicated. I want to crack GATE. Want to get into IITs. I want to study masters from there. So what was the strategy you followed in 4th year? What was different from what you did previously in your past, like what you did in your 2nd or 3rd year? So what was different scenario you did in 4th year? Okay. So I started my 2023 preparation around maybe June. Where I took a gap. Actually, when I did my when I gave GATE 2022, I realized that it was not up to my expectation. So I actually switched some of my मतलब तब मेरा क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था गेट पढ़ने के लिए, गेट का सब्जेक्ट पढ़ना. तो मैं आई टूक अ स्विच. पढ़ लिया यार. हाँ, मतलब उतना भी अच्छा नहीं हुआ, क्या करूँ. मतलब अब मैंने क्या किया था, मैं एक्चुअली डेवलपमेंट कर रहा था वो 2-3 महीने. फिर भी कर लिए, कितना कुछ कर रहे हो. अरे ऐसे नहीं, मतलब मेरा अच्छा लगता है डेवलपमेंट करने में. सो वही, तो फिर जून से मैंने स्टार्ट किया फिर से. तो इस साल मैंने, मतलब 2023 में मैं स्टेप वाइज किया सब कुछ. तो मैं दोनों एक्सेल शीट बनाया है. तो एक एक्सेल शीट फॉर टेस्ट सीरीज एनालाइज एंड एक एक्सेल शीट फॉर द रिविजन. So guys, you can note like what he said.
that he prepared 2 Excel sheets. So it is very necessary. अगर Excel sheet नहीं बनाते तो मेरे सजेशन ये रहेगा, आप किसी कॉपी में ये वाला नोट करके रखो कि मैंने आज क्या काम किया है, क्या गलती हुई है. सो कंटिन्यू. ओके, सो वही एक्सेल शीट में मैंने क्या किया, मैंने मेरे प्रिपरेशन को 3 स्टेज में डिवाइड किया. तो पहले फर्स्ट स्टेज में मैंने डिवाइड किया, आई विल प्रिपेयर द टॉपिक्स. ओके, एक टॉपिक वाइज सबको प्रिपेयर करेंगे, फिर जाके एक टॉपिक करके पूरा सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, फिर जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर जाके टोटल सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे. तो इट्स लाइक देखो, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले टॉपिक, मेरा ऑलरेडी कोर्स किया था मैंने, तो लाइक मेरा तो ऑब्वियसली नोट्स मैंने लिख लिया था 2022 में. अब ऑब्वियसली दिस ईयर आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू द सेम थिंग बट रिविजन वाइज. मतलब मैं रिविजन कर रहा था और देख रहा था कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट गैप्स है. तो मैंने क्या किया, तो मैंने पहले टॉपिक्स को पढ़ा. ठीक है, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एक टॉपिक, सोचो कि मैं COA का पाइपलाइनिंग पढ़ा, तो पाइपलाइनिंग के ऊपर मेरे पास जो टेस्ट सीरीज़ है, तो मैंने अराउंड 2 to 3 टेस्ट सीरीज़ लिया था. 2 to 3 टेस्ट सीरीज़ तो उतना ज़्यादा नहीं किया, मे बी एक ही टोटल किया था. तो लाइक 1 or 2 टेस्ट सीरीज इज एक्चुअली इनफ. if you buy a good test series, I think that is actually enough. You don't have to buy anything else. Okay, we'll talk about what test series you should buy or what courses you can take later. Okay, so the thing is that I prepared topics. So first would be you did the topics, Yes, then you gave those subjects, then revise entire subject. Exactly. Like this was the cycle. exactly. So this is the thing I did. I did topic, I did my PYQs in that topic, I gave test series, I gave a test, and then note down that क्या क्या गलत किया मैंने उस टेस्ट में, वो एक्सेल शीट में पुट कर दिया था. मैंने सोचो कि पाइपलाइनिंग दे रहा था, मे बी आई गेस हैज़ार्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने लिख दिया था कि प्रॉब्लम्स हो रहा है हैज़ार्ड्स पे. तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम वो सेम टॉपिक देंगे या सेम सब्जेक्ट देंगे, देन आई विल स्पेसिफिकली रिवाइज दैट टॉपिक, जो टॉपिक में गलत हुआ. लेट्स से जो मैंने बोला हैज़ार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है पाइपलाइनिंग में, तो मैं उसको रिवाइज करता था. तो लेट्स से मैं COA 1 दिया, अब एक दूसरा टेस्ट सीरीज़ में और एक COA का सब्जेक्ट है, तो उसको देने के आगे मैंने उधर जो प्रॉब्लम हुआ था उसको रिसॉल्व किया था. फिर जाके मैं उस टेस्ट को दिया था, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, हैज़ार्ड में जो क्वेश्चन है वो मैंने कर पाया. तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली एनालाइज टेस्ट सीरीज. यू शुड एनालाइज व्हाट मिस्टेक्स आर यू डूइंग. लाइक तुम क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, या और यू डूइंग कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, और यू आर डूइंग लाइक तुम्हारा कैलकुलेशन में स्लो हो रहा है, जो टाइम मिस्टेक होता है, मतलब तुम टोटल पूरा क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे हो टाइम के हिसाब से, तो वो तुमको एनालाइज करना पड़ेगा ठीक से. ओके, बिसाइड दैट उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स किया. तो अगर पूरा टॉपिक्स हो गया एक सब्जेक्ट का, तो मैंने फिर सब्जेक्ट को रिवाइज किया, फिर जाके उस टोटल सब्जेक्ट्स का PIQ फिर से किया, और फिर जाके तुम्हारा टेस्ट दिया उस सब्जेक्ट का. एग्जैक्टली, सब्जेक्ट टेस्ट. तो इसके ऑब्वियसली इसके मिडिल में तो मैंने जो एक गो क्लासेस करके एक कोर्स रहता है, तो मैंने उधर एक उन लोगों का जो सी प्रोग्रामिंग और डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स है, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए. मतलब मैंने जब जून में स्टार्ट किया था, वो मतलब उसी से ही स्टार्ट किया था मैंने. मेरा डिस्क्रीट मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने उससे स्टार्ट किया था, और लाइक इट वाज फेनोमिनल. सो आई थॉट कि अगर कोर्स लेना है तो इसी का ही लेंगे. अब पता नहीं कैसे, मतलब वो लोग अगस्त में अराउंड एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, तो उधर आई गॉट अराउंड लाइक इन द टॉप 20 समथिंग. Oh, nice. Yeah, so he also got a good rank there. So Okay, he so my marks wasn't that acceptable. So Though I don't want to. actually I the don't paper want to elaborate on that. actually the paper was very good. Like paper was very tough Cut actually. this. Okay, so the paper was very tough. So I got around 75% of scholarship on their course. So I bought their course, and from there I actually did my revision. So whenever I used to revise, I don't just revise from my copy. I used to go through their notes, their slides or the videos, and then go through my notes again. So actually I found lots of misconception on my notes. So I fixed that thing during that part. So वही, और मैंने जो बोला कि PYQ मैंने एक्सटेंसिवली किया. एक जो स्टोरी था, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है सायक करके, तो
तो हम लोग जब एक काम में फंस गया था लाइन में बहुत, लाइक इट वाज अराउंड 1 hour or 2 hours. Shayak is actually behind the camera. behind the camera. वो हम लोग उसको दिखा नहीं पाते, so आप She's actually going to IIT Patna MNC this year. So lots of IITians are actually coming out of this college. You can consider getting into this college. It's, like तुमको गेट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा. लाइक इस साल तो ऑलमोस्ट अराउंड आई गेस 7 to 8 IITians आ रहे हैं कॉलेज. तो फिर तो बहुत अच्छा है. आपको तो जो भी है तो वही बोला मैं. तो सब्जेक्ट वाइज मैंने I think two IIT Bhubaneswar, one IIT Kharagpur, you got IIT Bombay, I am getting IIT Madras, Shayak is getting IIT Patna. So there are many IITians actually in this batch. ओके दैट्स सो वही. सो तो मैंने जो सब्जेक्ट जो मैंने बोला, हाँ, तो वो कहानी हो रहा था. तो सायक के साथ मैं ऑलमोस्ट 1 hour 2 hour लाइन में खड़ा था. तो वो बहुत बहुत बड़ा क्यू था और वी आर नॉट श्योर कि कब ख़त्म होगा. तो हम लोग ने क्या किया था, वो PYQ का जो PDF बुक होता है ना, उसको निकाला फ़ोन में और उधर PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. और उधर का जो मतलब वो जो लोग जो हम लोगों के पीछे था, वो लोग तो एकदम फ्यूरियस हो गया. उस धूप में हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे. हम लोग एल्गोरिथम्स कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स. वही बोल रहा था, अरे क्या कि मतलब पढ़ के इन लोग पागल हो गए ऐसे. बट वही लाइक वी एक्चुअली एंजॉय डूइंग दैट, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था करने ये में. मत करना, ये पब्लिक स्टंट है, ये वाला करना है, मार खा जाओगे कहीं पर भी. नहीं ऐसे नहीं, वो मतलब दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट. और ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग फ्री टाइम, लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू और इफ यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक और तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है अभी, क्योंकि तुम मतलब वो ट्रैफिक में फंस के तो तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे. तो वो रील्स फेसबुक देखने की जगह तुम PYQ बुक देख लोगे, तो वो एक्चुअली बेहतर होगा तुम्हारे लिए. एक्चुअली ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब जब तुम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सोशल मीडिया को जितना कर सको अवॉइड करो. सोशल मीडिया अगर तुम्हें एक्चुअली यूज़ करना है तो मेरे अकॉर्डिंग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम तक ही लिमिटेड रहो, क्योंकि वहाँ उसके दूर मत जाओ. मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब पे मत जाओ, क्योंकि ये सब पे अगर एक बार चले गए ना, निकलने का कोई रास्ता नहीं है. ठीक है. और यूट्यूब के लिए भी अगर कोई सजेशन रहेगा तो यूट्यूब के लिए एक अलग अकाउंट खोल लो, जहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही रहेगा. किसी और कोई कंटेंट पुश नहीं करेगा यूट्यूब जिससे तुम्हें. तो मतलब तुम्हें खुद के अंदर फोकस लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई तुम्हें फोकस लाके देगा नहीं. सो यू कैन कंटिन्यू. जो शुभदीप ने बोला, लाइक टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी हार्ड स्किल एंड आई एम श्योर कि यू शुड मतलब इसको अच्छे से तुमको एटलीस्ट गेट प्रिपरेशन के टाइम में इसको अच्छे से तुमको फिक्स करना है कि कौन से टाइम में क्या करोगे. एज आई सेड, मतलब मेरा मैंने जो ट्यूशन्स लेता था उधर बहुत सारा टाइम निकल जाता था. तो अगर मैं उसके ट्यूशन आने के बाद मैं अगर रील्स देखना स्टार्ट कर दिया होता तो आज गेट क्रैक भी नहीं होता. तो वही मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट किया कि इसके बाद मैं जब आऊँगा तो मैं ये वाला चीज़ करूँगा. तो वही जो मैंने बोला, मैं एक्सेल शीट में क्या करता था, जो एक रिवीजन शीट था, उस रिवीजन शीट में मैं 2-3 दिन का प्लान पहले लिख देता था. फिर मैंने क्या किया था, उस दिन में वो कंप्लीट करेंगे. आज जो भी हो जाए, आज अगर तूफान आए, आज अगर बारिश आए, आज अगर अर्थक्वेक हो जाए, मुझे वो कंप्लीट करना है. और मैंने किया भी. मैंने कंप्लीट करता था उसको, लाइक मे बी रात 2-3 बजे हो जाएगा, बट कंप्लीट करूँगा उसको. क्योंकि मुझे नहीं अगर बाई चांस इफ़ यू लाइक कोई भी इम्पोर्टेंट काम में फंस गए, तो मैं क्या करता था, उस वाला चीज़ को नेक्स्ट डे में शेड्यूल कर देता था. फिर जाकर नेक्स्ट डे मैं एक्स्ट्रा टाइम देके उसको कंप्लीट करता था. तो ये एक्सेल शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई भी शीट, अगर तुम एक डायरी में भी लिख रहे हो तो पहले ही तुम 2-3 दिन का प्लान पहले कर लो. कि ऐसे नहीं कि तुम एक साल का प्लान पहले कर लो, कि तुम पहले ही गेट प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम बोल रहे हो मैं IISc जाऊँगा फास्ट में. तो ऐसे मत करो. ऐसे करोगे तो नहीं होगा कुछ. लाइक एग्जैक्टली. सो टेक स्मॉल स्टेप्स, ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स दैट विल गेट इनटू अ बिगर स्टेप इवेंचुअली. कि तुम पहले 2 दिन का प्लान करो, या उस 2 दिन के बाद फिर तुम नेक्स्ट वीक का प्लान करो, फिर नेक्स्ट वीक का. ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट 2 महीने के प्लान कर लो कि हाँ मैं 2 महीने में ये 3 कोर्सेज कंप्लीट करूँगा, ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा. वैसे नहीं होगा.
तुम को टॉपिक चुनो, टॉपिक को कंप्लीट करो, फिर जाके उसको करो। तो ऐसे ही मेरा 2023 का प्रिपरेशन था। और टेस्ट सीरीज़ की बात है तो मैं ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट और मिक्स टेस्ट अराउंड आई गेस दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद मैं फुल लेंथ देना स्टार्ट करना चाहता था, बट एक्चुअली हम लोगों का सेम आ गया था उस टाइम में अराउंड दिसंबर 10 से। सो फुल लेंथ नहीं हुआ था अभी, क्योंकि सेम के लिए थोड़ा पढ़ना है। तो उसके बाद अराउंड 20 से मैं फुल लेंथ देना स्टार्ट किया, मे बी 1-2 दिया था, फिर जाके जनवरी से ही हम लोग दोनों एक साथ ही दे रहा था। वो टेस्ट सीरीज़ में हम लोग दोनों ही एक साथ एनालाइज करते थे कि कहाँ का मिस्टेक हुआ। वो अगर बोलता कि ये मिस्टेक हुआ तो मैं उसको समझा देता था, और मैं अगर बोलता कि ये कैसे किया तो वो समझा देता था। तो इट्स एक्चुअली गुड टू हैव अ लाइक गुड पीयर ग्रुप अराउंड यू, जो तुम्हारे ड्रीम के साथ मैच करेगा। तो वो एक्चुअली वो सबके लिए मोटिवेटिंग रहेगा। तो मेरा अराउंड लाइक 4 गाइज ग्रुप में था। तो एक तो सायक है जो बोला, और एक है सुजीत करके, वो आज नहीं आया, वो भी पाटना एमएनसी जा रहा है। तो वही, तो ऐसे ही तो अ गुड पीयर ग्रुप इज़ अ गुड थिंग फॉर योर प्रिपरेशन। और इसके बाद तो मैंने जब फुल लेंथ देना स्टार्ट किया अराउंड आई गेस 1 to 20 तक मैंने फुल लेंथ किया था। वो भी तुमने ही वही दिया था, और फुल लेंथ में इवेंचुअली हम लोग अच्छा किया था। ओके, सो यू गाइज लिसन, सो दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अ डबल डिजिट रैंकर। तो आपको एक्चुअली कंसिस्टेंट रहना है। सो आपको देवदूत के बातों को मतलब सुन के समझ में आ गया, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। देयर इज नो सच थिंग लाइक इफ यू आरंट कंसिस्टेंट यू वोंट बी गेटिंग द रिजल्ट। कंसिस्टेंसी व्हाट मेक्स यू अ टॉपर। Okay, so one of the major confusion among the aspirants is that the biggest war, that is also known as self preparation versus coaching. So if you would like to break down, if a student is self preparing, what should be his mindset, and if a student is preparing with coaching, like what are the aspects he should check before joining that coaching. Okay, You don't need to take any of the coaching's name. You can just say on sure, on a like high level overview, like Yeah. what are the aspects he must check. Okay. Okay. Actually, for self preparation, I should say कि always like when you are following your steps. Now, the first thing you should consider is following standard books. Like if you are going into coaching, you should check that if the coaching is actually teaching from standard books or not. If they are not teaching from standard books, ask for references from where they are teaching. If they are not providing you reference to the books they are teaching from, then you can reconsider your course choice कि तुम ये कोर्स लोगे कि नहीं, ये तुम सोच के देख सकते हो। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ाते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट। सो इन केस ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, तुमको नॉर्मली क्या होता है, अगर अच्छा कोचिंग होगा तो वो एक्चुअली तुमको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाएगा। अब अगर वो तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो तो यू हैव टू फाइंड आउट दो स्टफ्स बाय योरसेल्फ। तो तुमको स्टैंडर्ड बुक्स खरीदना पड़ेगा या लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा, उससे तुमको पढ़ना पड़ेगा टोटली। ओके, सो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम standard references. सिर्फ standard books नहीं, you can also practice from standard references. Like there are multiple question papers from good colleges like Stanford, Oxford, right? From there you can actually try question and answers from to prepare yourself. So वही कि तुम जब self prepare कर रहे हो, always follow standard books. और जब तुम coaching ले रहे हो एक, यू शुड चेक कि वो कहाँ से पढ़ा रहा है, वो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस ले रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। और ऑब्वियसली दिस इज Okay, so this is a very important task, like he said, and as both of us were Go classes students, so we didn't have any problem with standard references. And if you want any discount on Go classes courses, check the link in the description. There is something for you. So coming to the next question. So what test series should one opt for? Like if you have given many types of test series, like you said you 3, if you would like to refer a student, for which test series should one buy? Because I get numerous DMs in LinkedIn like भैया मुझे ये टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। मतलब तुम्हारे लिए अगर मैं बोलूँ टॉप 2 अगर तुम्हें बोलना है तो कौन दो होगा? ओके, सो या मतलब
तुम जब टेस्ट सीरीज ले रहे हो सो ऑब्वियसली यू लाइक आस्क मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी यही किया था कि मैं सीनियर से आस्क किया था कि कौन सा टेस्ट सीरीज लूँ, तो उन लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ का नाम बताया बट मतलब उन लोगों का जो क्वेश्चंस था लाइक दे वर वेरी टेरिबल, लाइक आई डोंट वांट टू नेम द कोर्स इंस्टीट्यूट बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने जब कोर्स लाइक टेस्ट सीरीज़ लिया था एक मोस्ट द नेम इज़ द गो क्लासेस टेस्ट सीरीज शायद एक, लाइक उन लोगों का क्वेश्चन तो फेनोमिनल है, लाइक गो क्लासेस एंड गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज बहुत एक साथ तुम ले सकते हो, वो बहुत अच्छा मतलब द क्वेश्चन वॉज वेरी गुड, like they were picked up from standard resources and they also gave references to every question कि हाँ ये standard references से हम लोग उठाया है, तो वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू गिव like if you want to get another test series you can consider GATE@ZIL. The question quality is also very good there. I have seen, I actually personally did not took GATE@ZIL but one of my friend took GATE@ZIL, so I saw the question quality of them was very good, so you can consider two of this. Okay, so the two companies which they said, first was GATE@ZIL and second was Go plus Go classes. You can, this would be मतलब हम दोनों के प्रेफरेंसेस में ये दो टॉप चॉइसेस होंगे। अब आपका एक अलग प्रेफरेंस हो सकता है जो हमारे साथ मैच ना करे, आपके लिए कोई दूसरा टेस्ट सीरीज़ अच्छा हो सकता है, बट हम लोगों ने खुद जो देखा है ये दो टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में ये सबसे अच्छे हैं। अच्छा, सो very important question which every aspirant faces but nobody talks about it, like you said a peer group is very necessary, but what if a student faces the peer pressure, like how should he deal with it? Okay, so the first of all the thing is that your main competitor is yourself, right? I used to, like some of the time I used to face this, that some of my friend is getting good marks in test series but I am not getting enough, but this thing will come obviously, like you cannot entirely eliminate these thoughts from your mind, but what you can do is learn from them, right? You learn from your friends, you learn from your enemies, you learn from your competitors कि कहाँ जाके तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली द थिंग इज़ दैट कि तुम जब एक एग्ज़ाम दे रहे हो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर रहेगा तुम, मतलब तुम ये टेस्ट अगर 10 दिन पहले दिया होता और तुम टेस्ट आज 10 दिन बाद में दे रहे हो, वो डिफरेंस क्या रहेगा? तुम 10 दिन पहले भी सेम मार्क्स लाओगे या 10 दिन बाद में जब अब तुम दे रहे हो तभी भी सेम मार्क्स लाओगे? अगर तुम सेम मार्क्स ला रहे हो देन यू आर एक्चुअली फेलिंग, क्योंकि तुम इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हो, राइट? यू आर नॉट इम्प्रूविंग, सो योर मेन कॉम्पिटिटर शुड बी योर सेल्फ। तुम पिछले एक हफ्ता क्या किया था उससे बेहतर तुम इस हफ्ता तुम क्या कर सकते हो, दैट विल एक्चुअली लाइक एलिमिनेट दिस थिंग्स। ऑब्वियसली ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, राइट? लाइक every person's circumstance is different. What I am feeling, he is not actually feeling that, and what he is feeling, I am not actually feeling that. So this is actually varies person to person, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्सन इसको फेस करेगा वही अच्छे से बोल पाएगा। और लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कुछ स्टूडेंट के लिए कि उन लोगों का मे बी सिस्टर या ब्रदर बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में, और उन लोगों को बोलते हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम, अच्छे पढ़ाई नहीं करो, वो देखो क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली वो सब तो आएगा ही, लाइक वो एक्सटर्नल फोर्सेस तुमको आएगा ही डाइवर्ट करने के लिए, लाइक यू हैव टू टर्न दोस एक्सटर्नल फोर्सेस टू योर सेल्फ। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज़ करके तुमको इम्प्रूव करना है, तो यही है। और लाइक आई सेड बिफोर, लाइक आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन फॉर दिस, लाइक फॉर लास्ट 2 months ये सब नेगेटिव थॉट्स आ रहा था मेरे माइंड में, लाइक व्हाट इफ़ आई फेल, like what if the same thing happens in the exam, or like in 2022, like what if I panic again, okay? So yeah, some ऐसे थॉट्स आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेरे दीदी ने बोला कि हाँ तुम मेडिटेशन करो, उससे इम्प्रूवमेंट होगा बहुत सारा। तो आई डिड मेडिटेशन अ लॉट अराउंड एट नाइट, लाइक सब पढ़ने के बाद आई ऑलमोस्ट अराउंड 12 AM मैं मेडिटेशन में बैठता था। फर्स्ट 2 or 3 days I used to do like 15 minutes or 20 minutes meditation,
At final time I was almost doing 45 minutes of meditation. So like अच्छा एक्चुअली उससे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ. जो नेगेटिव थॉट्स मैं एग्ज़ाम देने के पहले आ रहा था कि व्हाट इफ़ आई गेट लो मार्क्स दैन माई फ्रेंड्स. दिस इज़ द थिंग. जब तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो तुमको लगेगा कि अरे वो तो 50 में 30 ले आया, अरे मेरा अगर 30 नहीं लाएगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा. हाँ, तो ये वाला थॉट्स एक्चुअली कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम माई माइंड आफ्टर आई डिड मेडिटेशन. तो मेडिटेशन के बाद मेरा लग रहा था ठीक है जो होगा होगा, बट आई विल गिव माई बेस्ट. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. और ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स भी बहुत बड़ा है कि मैं जब मेडिटेशन कर रहा था उसके पहले, जब मेडिटेशन नहीं कर रहा था तो तब मेरा बहुत सारा वो मिस्टेक्स हो रहा था, सिली मिस्टेक्स. लाइक फर्स्ट फुल लेंथ मॉक आई गेव, आई गॉट अराउंड 100 में अराउंड 50 आई गेस. सो उसमें आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 20 मार्क्स मैंने सिली मिस्टेक किया था. 20 मार्क्स सिली मिस्टेक बहुत ह्यूज फॉर मी. आई वाज डिवास्टेटेड. फिर जाके मैंने वो मेडिटेशन स्टार्ट किया तो वो एक्चुअली 20 मार्क्स एकदम कम करते करते लास्ट वाला टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज में मे बी आई गेस बहुत कम सिली मिस्टेक किया, मे बी 1 मार्क्स. आई डोंट थिंक आई मेड एनी सिली मिस्टेक इन माई फाइनल टेस्ट सीरीज, फाइनल फुल लेंथ. ओके, मे बी गेट में एक सिली मिस्टेक हो गया था मेरा. फिर भी जो भी है, मतलब क्या, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट दिस सिली मिस्टेक. दीज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू कैनॉट like completely eliminate this from your preparation. Okay, You need learn to from reduce it. Exactly, you have to reduce it and you have to find out what reduces it. Like मेरे लिए वो meditation था, तुम्हारे लिए क्या होगा, you have to find out. Obviously मेरा blueprint लेके तुम अगर तुम्हारे लाइफ में उसको इनपुट कर दोगे तो वो एक्चुअली काम नहीं करेगा ठीक से. You have to find out your blueprint और उससे तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट है, राइट? So that was it from our side. So if you like the video, please press the like button, and if you want to subscribe, you may subscribe. There will be more videos like this upcoming. So that's it from our part. This is me signing off. Goodbye.